अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे द प्रील्यूड बुक 1 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आज हम उसकी समरी और एनालिसिस देखेंगे। द प्रील्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल poem in blank words by English poet William Wordsworth. He intended as the introduction to more philosophical poem, The Recluse, which Wordsworth never finished. The Prelude is an extremely personal work and reveals many details of his personal life. आज हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि उसमें क्या ऐसा था कि ये पोम इतनी सक्सेसफुल हुई और इसके अंदर क्या ऐसे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं जो कि वर्ड्सवर्थ को कनेक्ट करते हैं नेचर से और पेंथिज्म का एक थीम हमें देते हैं। Well, there's a question. Why did he write Prelude? So, answers are, and there's several answers. He wants to reflect on his experiences and express his feelings through the medium of a poem. He is in awe of nature rather than in shock. I think he is in awe of how nature can change the course of good and evil in people. He wrote it to show his feeling on how nature, although it appears nice, is a force greater than we realize. To prove that nature is much greater than man and holds more power. To show vastness of power and how it is underestimated. He wrote the poem for himself to reflect on how admires the power of nature and how events and their effects last forever. He might have written for himself to remind himself of the power of nature and his admiration for it, to show experience of him viewing the power nature has over humanity. I think he could have written it as a story of his life, as each chapter was an advancement of his life. He wrote it to show how insignificant man is to nature, his awe of nature and domination power over the insignificance of humanity, to contest against those that the time who thought human had power over nature. Wordsworth wrote the poem to express his opinion about the power of nature. So everywhere this universal element we find is nature, because whatsoever he is writing about, whatever idea he may have in his mind, the main connecting hook is the nature or the theme of the life and life of human beings and nature, which he is connecting through his autobiography. So introduction, childhood and school time. इसमें हमें बताता है कि ये एक बड़ा खूबसूरत एक ऑटम का दिन है और जो पोइट है वो लंदन के हालात से बहुत तंग आ चुका है और वो लेक डिस्ट्रिक्ट वापस आया है। ये वो जगह है जहाँ उसने अपना चाइल्डहुड गुजारा और नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स हिज एज एज द पोम ओपन्स बिकॉज टाइम कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड थ्रू आउट द नरेटिव। यानी इसमें उसकी कोई एज स्पैन फिक्स नहीं है क्योंकि वो अपने बचपन के मुख्तलिफ वाक़यात को विदाउट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस पोम में बता रहा है। द स्टार्ट ऑफ बुक 1 फाइंड्स वर्ड्सवर्थ स्पीकिंग फ्रॉम अ मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि शुरू में वो बताना शुरू करता है अपनी आज के टाइम से। The body of the poem employs flashbacks to describe the development of poetic mind during the youth. So he tells his development of poetic mind and also he tells about his incidents of the past, especially of his childhood. So इस poem के अंदर वो अपनी उस डिस्प्ले कर रहा है पोइटिक मेच्योरिटी का और उसके साथ साथ अपने बचपन को भी रिकॉल करता है। Now, this material is amalgamated with the poet's adult views of philosophy and art, जो कि उसने इस राइटिंग के दौरान रखे और जो इसकी रिवीजन थी प्रील्यूड की 1799 से 1850 तक उसके हवाले से, प्लस इसमें वो बताता है अपने एक्सपीरियंसेस जो उसे रिलीफ मिला नेचर में आने के बाद, और लंदन से जब वो नेचर में आया तो उससे अचानक ही एकदम से उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास अब स्पिरिचुअल फ्रीडम है और वो जो मेरे पास एक वज़न था सिविलाइजेशन का, एक जो बोझ था लंदन की लाइफ का, अब वो मेरे ऊपर से हट चुका है। तो वो बोझ हटा तो अब वो स्पिरिचुअल फ्रीडम
और मेरी जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है वो सामने आ गई. So, feelings of irresponsible freedom and lack of purpose quickly gave way to a provision of an impending period of optimism and creativity. तो इतनी ज़्यादा इसको आज़ादी मिली कि इसके सर पे कोई व्हाट वी कैन से इसके बोझ नहीं था और यहाँ पे अब वो मेंटली आज़ाद था. सो ही कुड यूज़ दिस पीरियड ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड क्रिएटिविटी. In the delight of coming here, he says that I have so many themes in my mind. So, in the delicious quiet Wordsworth suddenly sees in his mind's eye the cottage of a landlady with whom he stayed as a schoolboy. तो वो विजिट कर रहा होता है और बताता है कि मैं अब चल रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ एरिया से गुजर रहा हूँ. ये वो प्लेसेस थी जहाँ पे मैंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया. तो उसे वो कॉटेज भी नज़र आता है जहाँ पे वो लैंड लेडी है, जहाँ पे ये रहा करता था. और इसे याद आता है कि किस तरह ही हैड इमिटेशंस ऑफ हिज फ्यूचर ग्रेटनेस, मतलब ग्रेटनेस एज अ पोइट, कि उसे अपनी मोहब्बत नज़र आती थी नेचर के साथ, लिंक अप होना नज़र आता था. तो ही इज़ नाउ चेरिशिंग द ओल्ड टाइम्स इन दिस पोम, कि कभी मैं यहाँ पे रहता था, ये जगह बहुत प्यारी है, खूबसूरत है, और इससे वो पुराना जो बचपन है वो भी साथ साथ याद आ रहा है. So, his wish to create some profound work of art calls for a redisciplining of his life and mind, which has recently been dulled by the artificiality of society. लंदन में रह के जो उसकी क्रिएटिव पोटेंशियल था, दैट वाज नॉट वर्किंग वेल. ही हैड सो मेनी आइडियाज. नाउ व्हेन ही इज हियर इन लेक डिस्ट्रिक्ट, ही फील्स कि ये वो टाइम है कि इसको बड़ा एहतियात से यूज़ करना है, टू द बेस्ट ऑफ लिटरेरी पोटेंशियल, टू द बेस्ट ऑफ हिज स्किल्स. तो वो कुछ ऐसा लिखना चाह रहा है जो कि हमेशा याद रखा जाए. यहाँ पे वर्ड्सवर्थ फाइंड्स दैट ही हैज 3 नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर क्रिएटिविटी. तो वो कह रहा है कि मुझे अब यहाँ आके फील हुआ कि मेरे पास 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि क्रिएटिव प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं. वाइटल सोल, एक ऐसी सोल जो कि जिंदा है, जो कि डायनामिक है. नॉलेज ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स, यानी पोइट्री के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जो बेसिक नॉलेज है. एंड अ होस्ट ऑफ पेंसटेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना, और ऑब्जर्वेशन, निगाह, जो कि किसी चीज़ को देखने की. तो कह रहे ये 3 चीज़ें क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी होती हैं. एंड ही बिलीव्स कि उसके पास ये तीनों चीज़ें हैं. नाउ द इशू इज ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट, कि किस पे लिखा जाए. So he's searching instead for some philosophical song that cherishes our daily life, and then he's next assailed by doubts about the maturity of his views. If such views change radically after he has recorded them, his analysis of them will be worthless. In his indecision, he feels that if he reviews the ideas he formed in childhood and traces their history up until early manhood, he will find whether they have had any lasting truth and permanence. कि चीज़ों में चेंज आ जाता है, व्यूज़ में अगर चेंज आ गया, लाइक ही सेज कि अगर उसके एनालिसिस, अगर जैसे वो ये लिखता है और उसके बाद इसके व्यूज़, उनके अंदर तब्दीली आती है, तो इट मीन्स कि उसका ये जो एनालिसिस है वो वर्थलेस रहा, जो टाइम वो स्पेंड कर रहा है वो वर्थलेस रहा. तो वो कहते हैं कि अगर मैं एक ये काम हो सकता है कि चाइल्डहुड के ऊपर फोकस करूं और जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी उनको मैं लिंक अप करूं अब आज की मेमोरीज से, यानी नेचर के साथ जो इसका एक रोल था, मोहब्बत थी उस ज़माने में, बचपन में, और उसको लिंकिंग अप कर रहा है अब के टाइम में, जब ये थोड़ा सा मेच्योर माइंड के साथ यहाँ पे आया. Then finally he agrees that he should write on himself. वो अपने बारे में लिखेगा, अपना पास्ट लिखेगा, अपने चाइल्डहुड की एक्टिविटीज़ लिखेगा और अपना रिलेशन लिखेगा जो नेचर के साथ उसका था, और उसका एक कंपैरिजन करेगा उस रिलेशन के साथ जो नेचर के साथ अब इसका है. तो वो व्यूज़ जो उस ज़माने में इसके थे और जो अब हैं, उनका एक कंपैरिजन. सो अपनी चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है. ये सारी की सारी बातें उसने इस पोम के टेक्स्ट में की. दिस इज़ बेसिकली अ समरी ऑफ इट. ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोच रहा है अभी. दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन इन द टेक्स्ट. सो
उसे याद आता कि एक नेकेड सैविज की तरह वो खेलता था, रिवर के अंदर छलांगे मारता था, नहाता था, फिर क्लाइंबिंग करता था माउंटेन्स पे, बर्ड्स के नेस्ट से वो रात के टाइम अंडे उठाता था। और उसे ऐसा लगता था समटाइम्स कि नेचर को गुस्सा आया, यानी हवा उसका पीछा कर रही है जब वो अंडे उठा के भाग रहा होता था। तो ये एक तरह से चोरी का एक्ट था और इसे लगता था कि वो हवा इसको डांट रही है, नेचर गुस्सा कर रही है, जिस तरह कि माँ गुस्सा करती है। सो ये उन चीज़ों को बड़ा इंजॉय करता था, उस उन तमाम तर एक्टिविटीज़ को। He stresses the importance of reaction on the part of the child to every action upon it by the natural environment. In this way, nature develops morality in the child. Wordsworth sets the tone of the poem speaking religiously of nature. तो ये पैंथीज़म का हमें इसमें इफेक्ट मिलता है कि वो बड़ा रिलीजियस मैनर में नेचर को एडोर करता है. He sees it as a great and awesome intelligence. और उसे लगता है कि नेचर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है. Occasionally, he communicates his mood to the reader by employing natural objects as symbols of his feeling. तो वो symbolically natural objects को अपनी feeling बनाकर भी present करता है. जिस तरह इसकी फेयर की फीलिंग है, इसमें हैप्पीनेस की फीलिंग है, तो वो उन्हें नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के जरिए डिस्प्ले करता है. फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सीन है प्रिल्यूड में, दैट इज ऑफ स्टीलिंग अ बोट. So, in a celebrated passage filled with much color, the poet describes how, as youth, he stole a boat and rowed one night across the Ullswater Lake. At the climax of his experience, he imagined that the peak beyond the lake became a presence which reared up and menaced with him because of his misdeed in taking the boat. He confides that for some time thereafter he struggled to clarify a conception of pantheism which had been teasing his brain. He addresses what he terms the spirit of the universe. He decries the artifacts of civilization and praises enduring things, life and nature. So ये जो बोट सीन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो बात करता है बोट को चोरी करने पे और उसके बाद जो नेचर इसके साथ एक तरह से रवैया रखती है, द वे ही फाइंड्स द नेचर, और किस तरह ये चीज़ उसे पैंथीज़म से कनेक्ट करती है. So this is the text of the most important incident. Straight I unloosed a chain and, stepping in, pushed her from the shore. Nor without the voice of mountain echoes did my boat move on, leaving behind her still on either side small circles glittering idly in the moon. But now, like one who rose, proud of his skill, to reach a chosen point with an unswerving line, I fixed my view upon the summit of a craggy ridge, the horizon's utmost boundary. Far above was nothing but the star and the grey sky. She was an elf in Penes, when from behind that craggy steep, till the horizons bound a huge peak, black and huge, as if with voluntary power instinct, upreared its head. I struck and struck and struck again, and growing in stature, the grim ship towered up between me and the stars, and still, for so it seemed, with purpose of its own and myriad motion like a living thing strode after me. With trembling oars I turned, and through the silent waters stole my way back to the covert of the willow tree, and through the meadows homewards went. In grave and serious mood over the thoughts there hung a darkness, call it solitude, a blank desertion. No familiar shapes remained, no pleasant images of the trees or sky or sea, no colors of green fields, but huge and mighty forms. So यहाँ पे वो पूरा इंसिडेंट बयान है कि वो किस तरह एक कश्ती को खोलता है और उसको चलाता है, उसको सर्कल्स देख रहा है जो कि चांद की रोशनी में ग्लिटर कर रहे हैं सितारों की तरह, और उसे बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं कितना खूबसूरती से अपनी इस कश्ती को चलाता जा रहा हूँ. अचानक उसे दूर से माउंटेन नज़र आते हैं तो बड़ा खुश होता है माउंटेन्स को देख के कि अचानक एक माउंटेन उसके पीछे से इसको नज़र आता है. ये एक तरह से वो डायमेंशनल इफ़ेक्ट है कि आप सूरज के आगे हाथ रखें तो सूरज छुप जाएगा. तो एक छोटी सी पहाड़ी ने एक बड़ा सा पहाड़ अपने पीछे छुपाया होता है.
जब ये ख़ास जगह से गुजरता है कि वो छोटी सी पहाड़ी नज़रों से ओझल होती है, तो एक बहुत बड़ा हैबतनाक पहाड़ इसको नज़र आता है और इसको लगता है जैसे कि ये पहाड़ सोया हुआ था और अब इसकी चोरी की हरकत देख के उठ रहा है और अब उसके साथ साथ चल रहा है जैसे इसको सजा देने वाला है। तो उधर से ये ट्रेम्बलिंग हाथों से मोड़ता है अपनी कश्ती को और उसी विलो ट्री पे बांध के पैदल घर की तरफ आ जाता है। और फिर इस रात इसे नेचर खूबसूरत नहीं लगी, बल्कि बड़ी सीरियस लगी और बड़ी माइटी शेप से इसको फील हुई नेचर की। सो ये बेसिकली इसका ये वो इमेज था नेचर के बारे में कि नेचर माँ की तरह है, नेचर खुदा की तरह है। अगर अच्छा काम करोगे तो ब्लेसिंग्स देगी, बुरा काम करोगे तो मार भी पड़ेगी, डांट भी पड़ेगी, ड्रावा भी होगा। सो यहाँ पे इसने नेचर का वो रूप फेस किया। सो वर्ड्सवर्थ ये बता रहा है कि नेचर किस तरह उसे किसी भी मैनर में खुदा से कनेक्ट करती रही। ये उसके अंदर फीलिंग्स आती थी कि नेचर कहीं ना कहीं एक खुदा की डिपिक्शन है, वो खुदा की तरफ उसे माइल कर रही है। नेचर टू हिम इज़ अ मदर नेचर, टू हिम इट इज़ गॉडली नेचर। तो ये दोनों एस्पेक्ट साइड बाय साइड उसे फील होते हैं नेचर में। In a more literal section, he tells of his youthful pastimes and mentions water ice games with a group of companions and game of cards and tic-tac-toe in front of the fire. But above all, he tried to be outdoors at the time of the year so that nature could be unstinting in its education of him. He is particularly troubled when the members that certain vistas in the Westmoreland, particularly the sea, brought him great pleasures, though he had no prior experience of the same kind of joy. Since beauty is eternal, he may have learned to love such sights during the previous existence of his soul. So here he tells that he has certain pastimes जो कि उसने नेचर से कनेक्ट किए हुए थे, नेचर से रिलेट करती थी। वो गेम्स जो कि बर्फ़ पे खेली जाती थी, कुछ फायर्स के पास बैठ के जो गेम्स खेलते थे। सो ये सारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, फिर वो इनका कुछ मेंबर्स के साथ इसके जो विजिट्स थे, आसपास के इलाकों में घूमना, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना, ये सारे के सारे इंसिडेंट जो थे ये उसके उस चाइल्डहुड फीलिंग्स के साथ लिंक थे। और ही मे हैव लर्न टू लव सच साइट्स। तो वो जब भी जाता था वो इन तमाम तर नज़ारों को इसने सीखा कि किस तरह उनसे प्यार करना है, क्योंकि ये उसकी प्रीवियस एग्जिस्टेंस थी उस सोल की, यानी जो उसने बचपन में इन तमाम चीज़ों को जैसा महसूस किया, अब ये उन चीज़ों को फील कर रहा है। He then proceeds to develop a romantic theory of aesthetics. He maintains that certain individuals create great art because, in the midst of mundane events, they sense the magical urgency in everyday objects. Insignificant things take on a critical meaning over and above the common and instrumental role. They suggest to the practitioner of the fine arts and clergyman, the idealistic philosopher, that the universe is of vast and harmonious design. The layman, on the other hand, is insensible to the oneness of all things, and the idea must be communicated to them. So here he talks about aestheticism कि एक romantic theory aestheticism की develop करता है। कहते कि आप अचानक किसी भी mundane events में, materialistic life में कुछ आपके mind में themes आते हैं। वो जो themes हैं they are specific to people who think clergyman है या philosopher है या artist है। Anyone can go through this experience and he say कि layman जो है वो इनसेंसिबल है इन चीज़ों से, उसको इस चीज़ का नहीं पता चलेगा। इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, थॉट्स ज़रूरी हैं। सो अब अकॉर्डिंग टू हिम ही सेज दैट इन योर मंडेन लाइफ यू मे एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स जो कि आपकी लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं, जिनको आप प्रिजर्व कर सकते हैं और लेटर ऑन आप उन पे काम कर सकते हैं। जिस तरह लंदन में इसने बहुत सारे थीम्स को सोचा और अब लेक डिस्ट्रिक्ट में आके ही इज़ willing and able to talk about them, to work on them. So, the prelude क्या है? ये उसकी longest poem है. Now this is the analysis of the poem. And Paradise Lost के बाद ये सबसे लंबी poem है according to one critic. Its comparison with the great 17th century epic is in some respects a happy one, since Milton was Wordsworth's greatest idol. So वर्ड्सवर्थ उसको
बहुत ज़्यादा मानता था, यानी कॉलरिज के बाद. So Wordsworth was highly inspired by Coleridge and then by Milton. So उसने इस पोम को इस हवाले से लिखा कि ये शायद लेंथ में उसके मुकाबले में जाए, लेकिन इसमें यह है कि we come to know that it may be classed somewhat loosely as an epic. Though ये epic genre की traditions पे पूरा नहीं उतरती. इसमें heroic actions नहीं है, heroic characters नहीं है, wars नहीं है, इसके अंदर वो massive travel नहीं है. तो हम बेसिकली इसकी लेंथ की वजह से तो इसको एपिक या नरेटिव वर्क या नरेटिव लाइक पोम कह सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरीली एन एपिक वर्क. हाँ, इफ़ वी टॉक अबाउट लेंथ, सो प्रील्यूड जो है एक लेंथी पोम है जो कि बाकी पोम्स के मुकाबले में पैराडाइज लॉस्ट के बाद सेकंड नंबर पे. ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई और अनराइमिक लाइंस हैं इयम्बिक पेंटामीटर में, और इसमें हम देखते हैं कि जो मिडल 18th सेंचुरी थी इसमें लोगों का हीरोइक कपलेट से इंटरेस्ट लूज हो चुका था. सो एक रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट दैट वाज देयर इन मिल्टन लेड टू द establishment of Miltonic blank verse as a standard medium for lengthy philosophical or didactic poetic works. So इसके जो राइटिंग स्ट्रक्चर था उसे लेंथी पोम्स के लिए फॉलो किया गया. द रिजल्टिंग फॉर्म केम टू बी कॉल्ड लिटरेरी एपिक एज अपोज टू हीरोइक और फोक एपिक्स. तो उसके रिजल्ट में कुछ लिटरेरी एपिक्स सामने आई. To this type, Wordsworth, with his unconventional ideas of diction, brought a natural and conversational tone. So Wordsworth ने इस चीज़ को फॉलो किया, लिटरेरी एपिक को, और उसके अंदर उसने अनकन्वेंशनल आइडियाज़ दिए डिक्शन के, कि डिक्शन जो है दैट कैन बी सिंपल, दैट कैन बी लाइक एज सिंपल कि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और एक कन्वर्सेशनल किस्म की टोन दी जो कि उस ज़माने की लैंग्वेज के हिसाब से एक आम बंदे के लिए ईजी था. सो इसमें बेसिकली जनरल प्रोसीजर क्या है कि एक्सपीरियंसेस जो थे उसके पास्ट के, और फिर उसके एग्जामिनेशन, फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस थी इनका आपस का रिलेशन, और फिर उनको रिलेट किया उसने नेचर से और सोसाइटी से. सो अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्ट्स इन एन certain definite unevenness in the development of narrative. At present, particularly in the later half of the work, the narrative dries up altogether, and the reader must pick his way through the welter of disconnected disquisitions, frequently verbose, diffuse, and pathetic. His verse is carried by those rare moments when it flashes fire or reaches a resounding note of rich poetic song. The unwavering strength of the unity of purpose which underlie it also help it to show. Only a mere fraction of the whole poem may be said to be the great, but it is fraction that has continued to secure its high place on English literature. कि ओवरऑल देखा जाए तो पोम जो है ये इसकी देयर इज सर्टेन अनइवननेस इन द डेवलपमेंट ऑफ नरेटिव, के प्रॉपरली इवन नहीं है, एक ही अंदाज में नहीं चलती रही. हम देखते हैं कि इसके अंदर काफ़ी जगह पे कुछ खराबियां भी हैं कि बाद में आके पोम का जो इफ़ेक्ट है वो ड्राई हो जाता है. लेकिन इसमें इन तमाम तर बुराइयों के साथ जो इसका क्लाइमैक्स है, जो कि उसका मेन पार्ट है जहाँ पे वो अपने चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ का बताता है, इवन दैट इज़ इनफ टू सिक्योर इट्स हाई प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर. Well, artistically and religiously, he found youthful inspiration in the hills and the vales of Lake District. He responded to them with his simple ballads and joyous mysticism. In maturity, it was high Anglican church tradition to which he turned for a personal faith and as a source of many of his later poetic ideas. Of course, we do not witness the entire spectrum in the prelude. That poem is basically democratic in spirit. Only at the very end do we feel the impending onset of conservatism. So we come to know that this poem is more about that mysticism. So that is a joyous mysticism जिसका यहाँ पे नाम दिया गया कि एंग्लिकन चर्च की जो ट्रेडिशंस थी उस हवाले से, फिर जो उसका पर्सनल फेथ था. सो ये चीज़ें हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि नेचर जो है दैट इज़ कॉन्स्टेंटली
connecting him with the God, or his pantheism is coming to the front. And we feel that this is not only a poem about his childhood, rather this is the poem which is a highly philosophical poem, and this is connecting him with God. वो इसे खुदा से कनेक्ट भी करती है। इस खुदा, ये नेचर के अंदर खुदा को भी देखता है, नेचर के अंदर मदर को भी देखता है, और उनके साथ अपनी एक, यानी नेचर के अंदर एक बाम भी तलाश करता है, एज इफ कि नेचर इज गिविंग अ डाइडेक्टिक फीलिंग टू हिम. सो दिस इज ऑल टुगेदर one of the greatest poems of English literature. So I hope that this was quite easy for you to understand. Thank you very much. We'll be coming up with the second book soon.